Hi everyone, welcome back to Coding Ninjas. Let's wait for a couple of seconds till people join. We're going to talk about how do software engineers earn so much. काफी interesting topic है and I think काफी factual भी है. We are comparing to a lot of other jobs here and हम इसी point पे discuss करेंगे how do software engineers earn so much. तो चालू करते हैं. So whenever you talk about software engineers, right? It's a very tricky thing because there's a lot of responsibility, and when you talk about this particular era, when we talk about softwares, आजकल chat GPT भी काफी चल रहा है, तो तुम लोगों ने काफी ज्यादा boom देखा होगा. There are millions, like 57 millions active user on chat GPT uh, just in like a few months, and the company raised up to $29 billion. Obviously $10 billion, that means 46% stake जो है वो Microsoft का है. But again, coming on to this word software, all right, software is used like worldwide. So because if you're going to talk about the qualified software engineers actually present in the industry versus versus the actual need in the industry is like around 18%. तो तुम लोगों को समझ आता होगा कि कितना ज़्यादा important है, मतलब there is a big shortage. So we are going to talk about every particular aspect, what makes a software engineers earn more than random jobs out here. So the first and the foremost point that we are going to talk about here is the profit that we get per measured user. With per measured user, I'm talking about per employee basis. All right. तो जब भी ये कंपनी काम करती है, हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कंपनीज व्हाई डू दे पे अप so much more to software engineers, तो इनका प्रॉफिट कैसे निकलता होगा. So if you're going to go and check the stats on howmuch.com, right, and you're going to see the stats of कि एक पर measured user हमारे को कितना प्रॉफिट मिलता है. तो अगर तुम गूगल का नंबर देखोगे ना, दे आर एक्चुअली अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ लाइक $1.9 million per annum per employee. So that's huge. मतलब एक employee के through they are earning $1.9 million dollars. That's very huge. Or they end up paying like 100K or 200K dollars. तो ये आराम से तुम्हारा 10%, I mean 10 times profit हो रहा है जो कंपनी को मिल रहा है per measured user. So that is one of the thing. Why do they end up giving so much money to software engineers? Second important point, I think, is the most relevant one is if you're going to check the Forbes of this current year, तो तुम्हें सिर्फ यूएस के अंदर जो जॉब ओपनिंग्स मिलेगी, they are around 9 lakh, but the application that people apply for is around like 2 lakh. तो तुम्हें obviously ये नंबर दिख रहा होगा, it's around 20%. तो सिर्फ 20% एप्लीकेशन हम लोग के पास आती है फॉर होल स्पैन. जितनी हमारी इंडस्ट्री के अंदर नीड है उसके अंदर सिर्फ 20% इज व्हाट एप्लीकेशंस दैट वी गेट. तो दैट इज व्हाई, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, शॉर्टेज ऑफ एप्लीकेशन है, उसकी वजह से दीज कंपनीज एंड अप पेइंग मोर टू यू गाइस. तो अगेन मैंने ये कहा था, जो पहला पॉइंट था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, पहला पॉइंट जो था कि एक कंपनी पर मेजर्ड यूजर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है, उसके अंदर से if they end up giving quite a number, let's say 10%, तो they don't I mean उनको इतना फर्क नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर चीज से. नाउ हम लोगों ने एप्लीकेशन की शॉर्टेज देख ली, बट देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कि वी डोंट गेट क्वालिफाइड इंजीनियर्स नाउअडेज. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, जब फेसबुक ने एक्वायर किया था इंस्टाग्राम को इन 2012, राइट, दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टाग्राम की जो टीम थी दैट वाज ऑफ ओनली 13 मेंबर्स. तो 13 मेंबर्स की टीम ने इंस्टाग्राम जैसी एक बड़ी एप्लीकेशन बनाई थी, एंड यू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड हाउ मच बिग टेक जायंट इंस्टाग्राम इज. तो 13 जनों की एक टीम ने इंस्टाग्राम को पब्लिश किया, एंड उसके अंदर 13 जने, दे वर नॉट जस्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे वर people related to finances, outsourcing, how can they do the sales and marketing and stuff. But the overall point is 13 जनों की टीम ने they made a efficient project or a product that is sustainable in the current industry. तो इससे तुम लोग देख सकते हो कि highly qualified users
हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स अगर होते हैं तो उनको कंपनी अगर पैसा देती है तो देयर इज नो पर्टिकुलर लॉस इन देम। और उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, व्हेन फेसबुक acquired Instagram in 2012, there were two big founders name in those 13 member list. So that is one important part. Why do software engineers earn so much? Because qualification, the qualification that they have to make a product successful in a longer run, in like 5 से 10 साल आगे अगर हम बात करें उसके लिए। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल तुम लोगों को दिख ही रहा है, चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 30th November 2022, अभी थोड़े टाइम पहले, एंड तुम लोगों ने बूम देख लिया होगा। इट्स अ $29 billion कंपनी, $29 billion, I'll repeat it। और जो कितना बड़ा नंबर है, Instagram took like 1.5 years to reach a million users, but ChatGPT took just 5 days to reach a million users. So that is what is the strength of software, because software is everywhere. सॉफ्टवेयर जो है वो हर जगह है। There's one more important thing, जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन आउट देयर, हर कोई यूज कर सकता है। देखो, दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स यहाँ पे, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज यूज बाय एवरीवन, पीपल एंड अप पेइंग मोर। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉफिट पर मेजर्ड एम्प्लॉय, we have discussed the shortages of application that you have in the industry. Obviously तुम लोगों ने देखा होगा when you go on career websites of multiple companies, या फिर अगर तुम सिर्फ यहाँ के IT openings देखोगे USA की and इन बड़ी बड़ी कंपनियों की, there are huge number of applications open, there are lots and lots of position open, but the applications, the qualified engineers for that particular position are very less. ठीक है, that makes it a bit difficult to crack that job. And because अब ये सोचो, अगर आप 10 जनों में से सिर्फ 10 पोजीशन में सिर्फ एक पोजीशन को फिल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू कैन एंड अप पेइंग मोर, राइट? सो दैट इज हाउ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अर्न बेटर मार्जिनली। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो इसी पे आ जाता है, बिकॉज ये क्वालिफिकेशन थोड़ी हार्ड होती है। एंड व्हाई इट इज दैट? बिकॉज प्रोग्रामिंग इज हार्ड। हमारे अंदर ये बहुत मतलब कॉमन सा नोशन होता है, बिकॉज we see software engineers as someone who studies a lot, and yet that is actually true, because they study a lot. So programming थोड़ी hard होती है, this is a fact, because there are lots and lots of stuff you have to like go on Stack Overflow to check bugs। अगर वो bugs वहाँ पे होते नहीं है Stack Overflow पे, तो तुम्हें खुद वो resolve करने होता है by adding in break points, सारे check points लगाने पड़ते हैं। you have to run the whole product end to end, जो भी API तुम लोग टेस्ट कर रहे हो, whatever feature that you are testing, तुम्हें end to end काम करना पड़ता है कि and logging करनी होती है। तो it's a very difficult flow to understand। and अगर तुम बात करोगे onboarding की, if I talk about Google ऐसा कहता है कि to make a new I mean a newbie or a new employee to become productive, it takes around 6 to 12 months। यानी 6 से 12 महीने लगते हैं एक न्यू इंजीनियर को टू बिकम प्रोडक्टिव, राइट? सो व्हाई डू दे से दैट? बिकॉज प्रोग्रामिंग इज हार्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप इसके अंदर सस्टेन कर जाते हो, ऑब्वियसली इफ यू आर मेकिंग देम, और इसको हम लोग अगर पहले वाले पॉइंट से जोड़े, दैट मीन्स पर मेजर्ड यूजर, पर मेजर्ड एम्प्लॉय, अगर तुम इन कंपनीज का प्रॉफिट लेवल देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का देखते हो, तो पर मेजर्ड एम्प्लॉय Apple is earning $1.9 million per annum, और उनको दे कह रहे हैं $200K। That is almost 10% of what they are earning. This is how they are able to give them high amount of salary. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हार्ड होती है। Again, this was the point. Now, coming on to the next very important point, जो है this particular things require constant learning। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर ये किसी भी अलग प्रोडक्ट, किसी भी चीज की तरह नहीं है। दिस इज जो भी तुम लोग अपने आसपास जो जॉब्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिक्स की जॉब या फिर समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर, इनके अंदर इतना चेंजेस नहीं आता। देयर इज नो चेंज। इनमें तुम लोगों को सटल चेंज दिखेगा आफ्टर लाइक 5 or 10 years। क्योर टुगेदर, लेट्स से कैंसर का एक बहुत ही नया सोल्यूशन आ गया, there's न्यू क्योर टू कैंसर, ये तुम्हें थोड़ा डाउन द लाइन आफ्टर 5-10 years दिखेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर्स,
every day, every particular day you are seeing updates. जैसे तुम्हारे iOS ऐप्स की बात कर लो या फिर तुम्हारे आईफोन्स की बात करो तो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं. इंस्टाग्राम अभी काफी ज्यादा मीम चल रहा है दैट दे आर प्लेइंग, दे आर टॉगलिंग द नोटिफिकेशंस एरिया, है ना, उन जहाँ पे नोटिफिकेशन होता था उधर एक्टिविटी हो गया, तो वो उधर खेल रहा है. व्हाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज दे आर अपडेटिंग इट एवरी डे. एंड व्हाई दे आर डूइंग इट? ऑन द बेस ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कस्टमर्स जो प्रोडक्ट टीम होती है, दे डिसाइड, दे डू सम decisions, they make some decision making on making the product usage better so that it can outsource in a better way. ठीक है, तभी एक रील आया. पहले रील नहीं होता था इंस्टाग्राम पे, देन द रील केम अप एंड नाउ रील इज लाइक हिटिंग अप वेरी वेल. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर गेट्स चेंज एवरी सिंगल डे. हर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं. तो नए अपडेट्स को सस्टेन करने के लिए यू वुड रिक्वायर अ पॉजिटिव एटीट्यूड और तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट लर्निंग. तुम किसी भी बग पे हो, यू आर फेसिंग एनी इशू, फॉर एग्जांपल लेट्स से योर सर्वर इज नॉट रनिंग अप, सर्वर इज नॉट गेटिंग पिक्ड अप, ठीक है, तुम एपीआई टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी तुम्हारी क्वेरी नहीं चल रही है, और योर पोस्टमैन इज रिटर्निंग 500 बिकॉज इंटरनल सर्वर इज नॉट वर्किंग. एवरी पर्टिकुलर पॉइंट in the product is going to make you understand some or the other thing. There is a reason why this thing is happening. कभी भी चीजें without a reason नहीं होंगी. You're not never going to see strange behavior. Obviously there are sometimes जब कुछ transient issues होते हैं, but again everything has a reason. And ये जो process होता है to make a product running end to end, there's a lot to actually figure out. There's a lot to learn. तो अगर तुम बात कर लो हाउ टू बग फिक्स, उन बग्स की मॉनिटरिंग कैसे करनी है. लेट्स से यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ डेटा स्टोर या क्यूज यूज कर रहे हो, हाउ कैन यू सी देयर मेमोरी कंजप्शन, हाउ कैन यू सी देयर टीपीएस, हाउ कैन यू सी व्हेन टू ऑटो स्केल देम, व्हेन टू ऑटो शार्ड देम, कब हमें उनकी शार्डिंग करनी है, कब हमें उनकी स्केलिंग करनी है. तो ये जो चीजें होती हैं, ये एक इंजीनियर को पता होती है हुज साउंड. एंड लेट्स से आज तुम्हारी जो क्यू है, let's say it is having a max limit of 30 GB, but रात को 12 बजे एकदम से स्पाइक आ गया and it reaches to 29.5. now as a good engineer तुम्हें काफी सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि अगर ये गलती से 38 कर गया, मेरा जो क्यू है वो फट जाएगा. and if there is going to be any more let's say message ingestion अगर आगे होगा, वो नहीं हमें शो होगा. why? because हमारे पास क्यू लिमिट थ्रॉटल हो चुकी है, हमारी क्यू थ्रॉटल हो चुकी है, राइट? तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? वी वुड थिंक अबाउट इधर स्केलिंग, हम लोग उसकी वर्टिकल स्केलिंग कर देंगे. लेट्स से क्यू की हमने 30 GB से हमने 50 GB कर दी. तो ये सारी जो थिंकिंग होती है, सारी डिसीजन मेकिंग होता है, बिकॉज दिस इज हार्ड एंड इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एक्सपीरियंस एंड कांस्टेंट लर्निंग. दिस इज व्हाई दीस कंपनीज पे यू मच मोर. देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से आज हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आज इंस्टाग्राम 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं अभी फॉर नाउ. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अभी 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और एक्चुअली यूजिंग इंस्टाग्राम. बट सडनली अगर ये एकदम से 100 मिलियन हो जाएगा, योर ऐप इज गोइंग टू रेंडर वेरी स्लोली. तुम्हारी ऐप चलना बंद हो जाएगा. काफी जो गो लोकल्स होंगे, काफी जोग्राफिकल लोकेशन होगी, उधर इंस्टाग्राम डाउन होगा, जो हमें काफी बार दिखता है. तुम लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप डाउन है, लाइक 10 मिनट से व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, 10 मिनट से इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है. यू नो हाउ मच बिग दिस बिजनेस लॉस इज. कितने बिजनेस चल रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, कितने बिजनेस चल रहे होते हैं व्हाट्सएप पे. there's lots of business going on. तो अगर व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप की रेवेन्यू जो है वो दैट इज गोइंग टू हिट वेरी हार्ड. तो अगर वो कुछ इंजीनियर्स को सिर्फ इसी चीज पे फोकस कर दे कि यार ये जो है, ये जो पर्टिकुलर ऐप है, अगर कभी भी थ्रॉटल होने वाली होती है, इसके टीपीएस हाई हो जाते हैं, तो देयर इज समवन हु कैन एक्चुअली सेव माय ऐप फ्रॉम गोइंग डाउन एंड इट कैन स्केल अप. मेरे को थोड़े रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, आई डोंट केयर अबाउट इट. मेरे को थोड़ी कंप्यूटर सर्विसेज यूज करनी पड़ेगी, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई वांट माय सिस्टम टू ऑटो स्केल. मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिस्टम है नाउ वो हैंडल कर ले 100 मिलियन का लोड, 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स का लोड. दिस इज व्हाट actually this company pay up software engineers for कि यार there is someone sitting at the back end, there is someone sitting in the company कि अगर मेरी जो लिमिट्स है, मेरे जो टीपीएस अगर वो हिट हो जाता है, तो भाई ये बंदा बैठा है, ये बंदा उसकी लिमिट को ठीक कर देगा कि आज 30 GB अगर टीपीएस है तो उसको 50 GB कर देगा. एंड समवन
is there who can actually settle. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लर्निंग सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वी रिक्वायर दैट एटीट्यूड. मतलब हमारे अंदर एक अच्छी मोटिवेशन होनी चाहिए कि वी वांट दिस प्रोडक्ट टू सक्सीड 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन. ठीक है, नाउ अ पॉइंट हियर इज एप्स क्योंकि डिफिकल्ट होती है आउटसोर्स करने के लिए. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज डिफिकल्ट आउटसोर्स की. एज आई सेड, मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था. इफ यू टॉक अबाउट गूगल, गूगल कहता है कि एक नॉर्मल नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर टीम में आता है, वेदर इट बी ऑफ एनी लेवल, उसको प्रोडक्टिव बनने के लिए इट रिक्वायर्स अराउंड 6 to 12 months. व्हाई? बिकॉज हर प्रोडक्ट का जो फ्लो है दैट इज डिफरेंट. एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट फ्लो, एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट टेक स्टैक. हर टीम का काम कुछ अलग होता है. लेट्स से देयर इज अ डैशबोर्ड टीम जो सिर्फ डैशबोर्ड देखती है. देयर इज अ पाइपलाइन टीम जो सिर्फ पाइपलाइन देखती है. देयर इज अ डेटा टीम जो डेटा देखती है. someone is processing over them जो उसके ऊपर क्वेरी कर रहा है और फिर उसके ऊपर मैट्रिक्स बना रहा है. सो देयर आर मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व. देयर इज अ नोटिफिकेशन टीम्स. ठीक है, तो हर टीम का जो फ्लो होता है of getting a signal or getting information and then rendering out the other information, it can be in the form of tables, it can be in the form of dashboards or whatever. Every particular thing has different flow. तो उसके अंदर ऑनबोर्ड करने के लिए, इतनी सारी चीज समझने के लिए हर टीम के अंदर डिफरेंट टैक्स टैग होता है. बिकॉज हो सकता है कि आज जिस पार्ट पे तुम लोग काम कर रहे हो सी शार्प है, तुम्हें अब जिस पे काम करना पड़ा है वो गो है. नेक्स्ट ईयर इफ यू आर स्विचिंग अ जॉब, शायद तुम्हें स्काला पे काम करना पड़े बिकॉज यू डूइंग डेटा प्रोसेसिंग. हर जगह टेक स्टैक अलग है, तो इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट टाइम फॉर यू टू बिकम प्रोडक्टिव. एंड this is why it is very difficult to outsource, and this is why people end up paying you for कि तुम यार काम करो, give us product, तुम मेरे को थोड़े टाइम बाद कुछ अच्छा सा फीचर लाके तो बट गिव इट. फिर इसको हम वापस से बॉयल डाउन करेंगे पहले वाले पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि these companies they end up getting lot more profit per measured user. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगता है. एंड अगेन with this software engineering, it comes a very high responsibility because that is a whole product. क्योंकि इसका सिंपल रीजन देता हूँ जो मैंने अभी पहले दिया इंस्टाग्राम का. लेट्स से आज इंस्टाग्राम 10 मिनट चलना बंद हो जाए, इंस्टाग्राम के थ्रू देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिजनेस लॉस. बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे बिजनेस लॉस होगा. ठीक है, सो विथ एवरी कोड दैट यू राइट, विथ एवरी लाइन दैट यू राइट, देयर इज अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव कि तुम वो कोड के लिए कितना चीजें सोच रहे हो. हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दैट लाइन. तुम इस लाइन की सिक्योरिटी के बारे में कितना सोच रहे हो, वहां पे कुछ फटेगा नहीं उसके बारे में कितना सोच रहे हो. सो देयर कम्स अ लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीजें समझनी होगी. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि यू हैव हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ योर सर्वर इज गोइंग टू रिएक्ट, हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिएक्ट इन सर्टेन केसेस. कि अगर ये केस हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये केस होगा तो क्या होगा. लेट्स से आज मेरी अगर क्यू का टीपीएस सेट हो जाता है तो क्या, मेरे लेट्स से कोई पाइपलाइन फट जाती है तो क्या. तो हाउ टू हैंडल दीज डिफरेंट केसेस, दिस इज वन ऑफ द हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए. दिस ऑल सम्स अप व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गेट paid so much. What skills are required to become an SD? So देखो, there are lots and lots of skill, but I would just say is I would want a software development engineer to be super sound and more having a good attitude towards the tech stack that he is going to work on. So why I'm saying that, because software engineer is actually, देखो आज मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट मी. I am proficient in C++, right? I've been a mentor in C++. मैंने C++ mentor किया है for quite some time now. But I can pick up Java, I can pick up Python. और मैंने Python की सीरीज भी बनाई है और मैंने Java की सीरीज बनाई. So if I know one language, I can pick that up. So a software engineer, irrespective of whatever things you have worked on, whatever projects that you have worked on, you should be highly motivated that you can take up a different space, a separate space. And you should have the willingness to be better at that. ठीक है, तो अगर आज तुम लेट्स से पाइथन पे काम कर रहे हो और नेक्स्ट टाइम तुम्हें टीम कहते हैं कि नहीं अब स्काला पे काम करो, यू शुड बी विलिंग कि तुम उस स्काला को अच्छे से समझो, क्या उसके अंदर है वो चीजें समझो, एंड यू एक्चुअली become productive. So that is one skill that I think
अपार्ट फ्रॉम जो टेक्निकल स्किल्स है कि तुम्हें डेटाबेस आना चाहिए एंड तुम्हें नेटवर्क के बारे में अच्छी चीजें पता होनी चाहिए, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पता होनी चाहिए, डेटाबेस के बारे में एवरी इन्फॉर्मेशन, बेसिक सिस्टम डिजाइन की जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सिस्टम डिजाइन नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू ये जो हार्ड वाला पार्ट है कि हम इसको कैसे आंसर के, जैसे मैंने कहा कि कोडिंग जो होती है हार्ड होती है, प्रोग्रामिंग इज हार्ड बिकॉज देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट दैट कम्स हियर, ठीक है। ये कैसे करे, और अगर हम बात करें कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ सेटल करनी है, हाउ यू कैन गो इनटू गेट हाई पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब कौन सी हाई पेड है? मैंग ऑब्वियसली, ठीक है, मेटा, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, दे पे यू अ वेरी हाई सैलरी। सो हाउ कैन यू लर्न अबाउट दैट? तो इसके लिए तुम लोगों को पता ही है क्या करना है, प्रैक्टिस दीज कंसेप्ट्स अ लॉट, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। और प्रैक्टिस हमें दो चीजों की करनी चाहिए, वन इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हाउ कैन यू स्टोर डेटा पॉइंट्स, लोकेशन के डेटा पॉइंट्स तुम लोग कैसे स्टोर कर सकते हो ऑन अ 2D प्लेन, हाउ कैन यू डू दैट? दिस इज वन क्वेश्चन। नाउ यू शुड बी सुपर साउंड इनफ कि तुम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच यू कैन स्टोर डिफरेंट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर? तो लोकेशन स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट, इस पे तुम लोग कितना सोच सकते हो? दिस इज वन एस्पेक्ट जहाँ पे तुम लोग टेक्निकल कैपेबिलिटीज की बात करो, टेक्निकल आंसर्स की बात करो। सेकंड इज समथिंग रिलेटेड टू सिस्टम्स, ठीक है। तुम्हें सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ डज योर डेटा बिहेव, हाउ डज द डेटा फ्लो वर्क्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तुम्हारा नेटवर्क कैसे काम करता है, हाउ डज नेटवर्किंग वर्क्स। कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप अभी लिख रहे हो www.google.com, तो हो क्या रहा है, तुम डीएनएस क्वेरी कर रहे हो, डीएनएस से तुम्हें एक आईपी एड्रेस मिल रहा है, आईपी एड्रेस इज गेटिंग अ फिजिकल लोकेशन, फिर फिजिकल लोकेशन से हम लोग लुकअप टेबल से हम लोग लोकेशन मिलती है, उधर से मेरे को एक फिजिकल कंप्यूटर मिलता है गूगल का जो कहीं पे पड़ा है एक डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या होता है इस प्रोसेस में, ये तुम्हें एक हाई लेवल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए, हाउ डज दिस थिंग वर्क। अगर तुम्हें ये सारी पता है, आई थिंक यू आर बेटर एट इट। तो ठीक है, पहला पार्ट का मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हाउ वुड यू प्रैक्टिस योर लॉजिक बेस्ड थ्रू कॉन्टेस्ट। The only thing that is going to help you down the line in getting a good job is क्या नए नए क्वेश्चन करो, ठीक है। और यही मैं समझता हूँ कि अगर तुम नए नए क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे को नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मजा भी आएगा, प्लस तुम्हारे अंदर आइडियाज भी काफी सारे आएंगे। तो उसके लिए यू गाइज हैव कोड स्टूडियो वीकेंड कॉन्टेस्ट एंड दे आर हैपनिंग एट अ वेरी गुड लेवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो तुम लोग को अच्छी मतलब रैंकिंग इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि the more number of people, the more accurate ranking that you have among the people, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम डाउन द लाइन कितने लोगों से अच्छे हो और कितने लोग तुम्हारे से आगे हैं। गेटिंग अ पॉइंट? तो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरी वीकेंड कोडिंग कोड स्टूडियो कॉन्टेस्ट। 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इजी, मीडियम एंड हार्ड। इफ यू आर एबल टू डू इट, दैट मीन्स you're टेक्निकली साउंड, तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग स्किल है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली गुड, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अगर सेकंड पार्ट की अगर मैं तुम लोगों को बात करूं कि हे वेयर टू लर्न अबाउट ये सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट, डेटाबेस मुझे कहां से सीखना है, या फिर मैं वेब डेवलपमेंट कहां से सीखूं, हाउ टू मेक गुड प्रोजेक्ट्स, अच्छा हाउ टू बिकम अ गुड क्वालिफाइड इंजीनियर, है ना, ये भी क्वेश्चन है ना किसी का, कि हम लोग क्वालिफाइड इंजीनियर कैसे बने। और ये सेकंड पॉइंट था हमारा कि हमारे पास अभी जो करंट इंडस्ट्री में है, वी आर लैकिंग गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हाउ कैन वी कंप्लीट इट बाय मेकिंग गुड प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड, ठीक है। व्हेन यू वर्क ऑन अ प्रोडक्ट एंड टू एंड, तुम्हें काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट जोमैटो, ठीक है, जोमैटो क्या क्या कर रहा है, तो जोमैटो हैज अ लॉट 3 पर्सोनास एक्टिंग, ठीक है। एक एग्जांपल से बात करते हैं, जोमैटो हैज 3 पर्सोनास एक्टिंग, वन इज योर डिलीवरी बॉय, वन इज अ कस्टमर हु वांट्स सम फूड, थर्ड इज योर रेस्टोरेंट्स। तो 3 पर्सोना के लिए हाउ कैन यू मेक दिस ऐप डिफरेंट? पहला क्वेश्चन, what all services do you think you would require? For example, inventory or a menu service that is going to keep track of every restaurant and their menu. कोई अपडेट हो रहा है मेन्यू में, कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ डिलीशन हो रहा है, वो ये सर्विस डील करेगी। देयर इज गोइंग टू बी ऑर्डरिंग सर्विस जो ऑर्डर्स के ऊपर डील करेगी कि यार कौन सा ऑर्डर किस बंदे ने किया है, किस रेस्टोरेंट पे किया है। सो एवरी एपीआई, फॉर एग्जांपल गेट ऑर्डर्स, गेट ऑल ऑर्डर्स, प्लेस एन ऑर्डर,
ये ऑर्डरिंग सर्विस करेगी, देयर इज अ पेमेंट सर्विस, देयर इज अ नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू डिजाइन? इसके अंदर तुम्हें क्या क्या चीजें कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें डेटा स्कीमा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस, व्हेन टू चूज व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस। तो तुम्हें नो सीक्वल लेना चाहिए या सीक्वल डेटाबेस लेना चाहिए। एंड फिर तुम फर्दर ड्रिल कर सकते हो कि इफ यू वांट लाइक ऑटो स्केलिंग कैपेबिलिटीज, ऑटो शार्डिंग कैपेबिलिटीज तुम्हें चाहिए, तो यू कैन यूज MongoDB NoSQL, बिकॉज दैट्स गुड, right? Or you should or do you want to use Amazon or RDS if there is a relational database kind of requirement? तो ये सारी चीजें तुम लोगों को कब सीख आएगी, जब तुम लोग ये टॉपिक सीखोगे। ये टॉपिक सीखने के लिए इफ यू वांट these courses for free, you've got our scholarship test, you've got a back using our scholarship test। तुम्हें scholarship test की लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी, एज वेल एज कोडिंग निंजास के कोड स्टूडियो के कॉन्टेस्ट की लिंक भी तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे देख लेना। You can go and see them and you can attempt those questions and get up to 100% scholarship। और इसमें तुम लोगों का फायदा है। Why? Because you're going to get a lot of knowledge, not just the interview question, but as well as उसके अलावा काफी सारे problems। And again, ये सारी चीजें तुम लोग को इंटरव्यूज में हेल्प करने वाले हैं। This is going to be your right। And if you end up doing all of this stuff with a good attitude, I'm sure ये जो टॉपिक है ना तुम लोग के लिए बना हुआ है, how do software engineers earn so much, you're going to be the answer of it। तुम्हें समझ आ जाएगा कि why are you an answer, because you're doing something that is making people's life better। Actually every single product that you use, whether it be WhatsApp or Instagram or let's say Zomato, Dineout or whatnot, Truecaller, every particular thing is making your lives easier in some or the other way। Uber तुम्हारी connectivity better कर रहा है, WhatsApp and Instagram is handling up your reach, right? Paytm, Google Pay, Phone Pay, they are making digital payments so good, right? Spotify is making your entertainment part very easy। So every particular software is actually giving you a quality experience, and every quality experience that adds in, that is not just for you, that's up for millions of people। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पे पे भी कर रहे हैं, राइट? जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दैट इज वेयर दिस कंपनी अर्न मनी फ्रॉम। और वो कंपनी का चंक जो प्रॉफिट का होता है वो तुम लोगों के पास आता है, एंड देन यू आर गोइंग टू बी द आंसर, एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी कि तुम्हारा कुछ फीचर लाइव हो, राइट? सो this is mostly about how do software engineers earn so much। And some question, what should we learn, DSA or development? I would say पहले DSA करो, फिर डेवलपमेंट करो, एंड देन दोनों पैरेलली। पहले DSA करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी करो, उसके बाद हमेशा हर रोज कॉन्टेस्ट देके डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट रोज करो लेकिन कॉन्टेस्ट रोज देना, बिकॉज यू नो DSA, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स टू कोड इन अ डे, वेदर इट्स DSA or dev? I would say the maximum that you can give। I used to study like around 12 or 14 hours a day when I was practicing during COVID। तो मैं 13 से 14 घंटे पढ़ता था रोज का for like a span of 3-4 months, and I was able to do। Okay, Ankit का question है, do you think India is lagging in tech innovation and new product development? I think that's a debatable question, but I'll tell you, if you're going to talk about USA, there are lots and lots of Indian software engineers who are actually working there, right? And when you talk about India lagging in tech innovation, I'll tell you the whole concept। Whenever you talk about a product, that product is not just dealt with a single team within a particular location। Everything is divided into multiple geographies। So for example, let's say जैसे अगर मैं बात करूं, लेट मी जस्ट रिकॉल नेम ऑफ ऐप, जैसे काफी सारी ऐप होती है जो चाइना में नहीं चलती है, राइट? या फिर यूजर इंटरफेस बिल्कुल अलग होता है इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और इसको भी अगर तुम लोग छोड़ोगे ना, देयर आर सम सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज हैपनिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इंडस्ट्री एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या कहता है, दैट एवरी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ सर्विस हैज टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर, मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट एक्चुअली वी डू, जब हम बात करते हैं गूगल की, अमेजन की, नेटफ्लिक्स की, माइक्रोसॉफ्ट की, व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने अपनी टीम्स को डिवाइड कर दिया इन मल्टीपल लोकेशन।
ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से नोटिफिकेशन सर्विस है, अगर वो इंडिया उस पे काम कर रही है, तो पाइपलाइन टीम माइट बी पॉसिबल कि वो ऑस्ट्रेलिया या लेट्स से सिंगापुर या अमेरिका की टीम पे काम कर रही है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज लाइक अ कॉम्बाइंड एफर्ट ऑफ ऑल। तो मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया इज लैगिंग इन टेक इनोवेशन, इट माइट बी अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट दैट वी आर एक्चुअली पिकिंग अप। बट ऐसा नहीं है, देखो यार कितने स्टार्टअप्स है, जैसे तुम लोग बात करोगे पेटीएम है, भारत पे, लेंस कार्ड, ये इंडिया की इनोवेशन ही है, ठीक है। एंड नाउ दे आर डूइंग सुपर, ठीक है। बट ओवरऑल द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, देखो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट्स रोज होते हैं। हो सकता है कि आज जो तुम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, आज से 5 साल डाउन द लाइन, 10 साल डाउन द लाइन, उसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज स्काइप की बात करें, स्काइप वाज यूज्ड लाइक 5-10 years अगो, स्काइप काफी ज्यादा यूज होता था, बट नाउ एमएस टीम्स, राइट, होल एक्सपीरियंस हैज बीन चेंज। अब स्काइप नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग समथिंग डिफरेंट। इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग बात करोगे, पहले हम लोग सी में काम करते थे, इनिशियली जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो सी में होते थे, ठीक है। बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू सम डिफरेंट लैंग्वेज, आज हम जावा में बात कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े टाइम में लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर में इनोवेशन होते रहते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोर गुड, बिकॉज ही इज एबल टू अडैप्ट, वो अडैप्ट कर पाता है उन चेंजेस को, बिकॉज ही इज टेक्निकली साउंड। इफ यू आर एबल टू अडैप्ट दिस चेंज, फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क में जाना है ना, एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन में माइग्रेट करना है, इफ यू आर एबल टू अडैप्ट दिस चेंज, कंपनी इज गोइंग टू पे यू, एज सिंपल एज दैट। बट ये जो एक्टिवनेस है, ये जो एटीट्यूड है, ये तुम लोगों में होना चाहिए, दैट यू आर capable enough to go from this particular point to that particular point and you want to drive it by your own. अगर ये तुम्हें है तो companies are going to pay you, because anyways companies are going to earn a lot. तो अगर तुम लोग देखोगे even Google, it earns like 1.6 million dollar, ठीक है, per employee a year, uh, right? Does AI replaces software developers down the line? I think no, because obviously software developers are the one who are actually making this AI. Yes, there is a lot of help that will be going on with AI. So, for example, a lot of companies have started using ChatGPT as helping them out in the code. But yeah, there could be. I mean, that is going to make a system more better. But I don't think it would replace software developers. So, yes, Sharath. So that is all by me. And yeah, software engineers are going to earn more. क्योंकि अगर तुम मैकेनिक्स और इन नॉर्मल जॉब्स की बात करोगे, टीचिंग इंडस्ट्री की जॉब की बात करोगे, देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। हर साल कोर्स चेंज नहीं होता ना तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का, राइट। एनसीईआरटी बुक का हर साल तुम्हारा कोर्स चेंज नहीं होता, बट हर दिन तुम्हारे फोन्स के अंदर अपडेट्स नए आते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई नया फीचर आता है, योर एमएस टीम्स, योर लिंक्डइन, योर व्हाट्सएप हैज डिफरेंट फीचर्स एवरी डे। अभी देखो पेमेंट आ गया ऑन व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट हो गया पेमेंट। So there are lots and lots of stuff going on. Stories are in Facebook, WhatsApp. So this is updates going on the application, and this is what software engineers are hired, और ये बहुत revenue generate करना है। तो anyways, software engineers are going to earn more, and these are the few more important points कि तुम्हारा जो profit per measured user होता है, difficulty to understand language, and outsource karna that product to millions of users, that is what make you pay a lot. And yeah, that's all guys. I hope you like the session, and these are some things that I think why do software engineers earn so much. ठीक है, yeah, that's all guys. Just last question I'm taking up, how to master DSA. I usually forget things, and if I get stuck for 3-4 hours for some problems, ओके यार कुछ नहीं, देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाते हो तो है ना, एक दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद चालू हो जाए। देखो कभी कभी मेरा भी दिमाग थोड़ा खराब होता है, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट इट्स ओके। हम लोगों को सब कुछ नहीं आता होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज सम पर्टिकुलर लेवल जहाँ तक हमारा दिमाग सोच पाता है, बट अगेन वो इवॉल्व होगा धीरे धीरे। तो आज तुम अगर 10 क्वेश्चन करोगे, 10 में से शायद 4 होंगे, नेक्स्ट डे करोगे तब भी शायद 4 होंगे, लेकिन अगर ऐसे 10-10 दिन करते रहोगे, रोज के 4 क्वेश्चन, at 11 day you're going to do 6 questions in those 10 questions. So it is all progressive in nature, but you will have to be consistent and you will have to practice, और ये हो जाएगा।
डिमोटिवेशन सबको होता है, मुझे भी होता है, बट इतना डिमोटिवेट नहीं होना है कि तुम प्रैक्टिस करना छोड़ दो. इंडिया में प्रॉब्लम कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, जॉब एस्पायरिंग एनवायरनमेंट एंड ऑर्थोडॉक्सिटी की, हाँ ये है, बट आई डोंट थिंक कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचता हूँ. आई जस्ट think about what all things I need to work on. That's it, guys. That's right, Mr. Question Mark, whosoever it is. So yeah, that's all. We'll meet in the next time. I hope you like the session, and I hope you get a fair sense of why a software engineers earn better than any other job right here. I'm not talking about businesses, obviously, but again, I'm talking about random jobs over there. So with that point, please keep learning. जितना मेहनत कर सकते हो करो, नई चीजें सीखो. Please try to work on a product end to end so that you can learn a lot of things, and that is going to make you a lot perfect. So thank you, guys. We'll meet in the next live, and AI के बारे में I'll talk about it in the next live. Thank you, guys. Bye. Take care.